I appreciate your presence, and today we are going to practice the numerical problems of chapter number 6, work and energy. And as you know that every long question contain two parts. First part is the long question, topical, and the second one is the mathematical or numerical problem. Every long question contain 9 marks. 5 marks from the topic mean any theoretical part, and 4 marks for the numerical problem. So let's see the first one. A man has pulled a cart through 35-meter applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. Distance S is equal to 35 meter, force is equal to 300 Newton, and work done we are to find. So as you know very well that the formula or the equation to find out the work, that is force into distance. So you know force is 300 Newton and the distance is 35 meter. So as simple as to drink water, you can see 300 multiplied by 35. So answer is 10,500 joule. Work always come in joule. Okay, let's go to the next level. Okay, a block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. बेटा सॉरी मैं रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ, तो मैं ज़रा रिकॉर्डिंग पे ज़रा ले जाऊँ इसको. सॉरी, क्योंकि फिर ये जाना होता है तो रिकॉर्ड होना चाहिए. आई एम सॉरी. Okay. So hopefully recording is going on. Okay. So second question, a block weighing 200 Newton is lifted 6 meter vertically upward. The potential energy stored in it. So weight of the block W is equal to 20 Newton and height is 6 meter. Vertically upward mean you need height, and we have to find the potential energy. Potential energy is very simple to calculate, that is mass, gravitational acceleration and height. So product of the three terms. You know the value of G is 10, mass is given, sorry, mass you can find out by from this weight. Weight is 20. So to find out the mass, we can divide it by 10. So mg multiplied by h. So mg is also representing the weight. So m multiplied by g is weight. So we will put the value 2 multiplied by 10 multiplied by 6. So 2 mean mass, 10 is the gravitational acceleration, and 6 is the height. So by multiplying these three terms, you can get 120 joule. So hopefully it is clear to you. Is it clear to you, my dear students? Okay, I need to see your thumbs up. Thank you, Harun. Thank you, Azu. Okay, thank you, all of you. Okay, now the next level. A car weighing 12 kilonewton has speed of 20 meter per second. So you can see the weight of the car is 12 kilonewton. Kilo mean multiply by 1000. So 12 multiplied by 1000, we will get 12,000 Newton. And the speed of the car is 20 Newton meter per second. Find the kinetic energy. You know very well kinetic energy. We calculate kinetic energy by the formula 1/2 mv square.
and weight is actually mg. M is the mass, G is the gravitational acceleration. So the product of mass and gravitational acceleration is the weight. So weight is given. So we are to find the mass to put in the formula. So we can divide weight by 10. सी जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एम के साथ, ये लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो एम विल बी डब्ल्यू ओवर जी. जी क्लियर बेटा हो गया. तो ये वेट का फॉर्मूला एम जी होता है क्योंकि हमारे पास वेट दिया है, हमें मैस नहीं दिया. वो तो वेट दिया है तो वेट से हम मैस फाइंड कर लेते हैं. वेट को हम 10 से डिवाइड कर दें तो वो मैस बन जाता है. तो देखें 12,000 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 1200 किलोग्राम आ गया. तो 1200 किलोग्राम इज द मैस. अब फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देते हैं. 1/2 ये 1200 मल्टीप्लाई बाय 20. 20 इज द वेलोसिटी. सो वेलोसिटी का स्क्वायर है. सो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400. 400 और 1200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 600. सो 6 4s आर 24 और कितने जीरोज हैं 2 जीरोज ये हैं 2 जीरोज ये हैं तो टोटल हो गए 4 जीरोज. सो 240,000 जॉल. अगर हम इसको किलो जॉल में डिवाइड करें तो 3 जीरोज जो है ना 1 किलो को रिप्रेजेंट करते हैं. तो 240 किलो जॉल. तो हमने 3 जीरोज की जगह पर के लगा दिया तो ये बन गया किलो जॉल में. जी बेटा हम आगे चलें. Shall we go to the next? Okay, thank you. All right. So next one, next level is a 500 ग्राम. देखो बेटा ग्राम हो या मिलीग्राम्स हो तो आपने इसको किलोग्राम में ही चेंज करना होता है क्योंकि एसआई यूनिट आपने पढ़ा है मैथ्स का किलोग्राम होता है. So 500 gram stone is thrown up vertically with the velocity of 15 meter per second. जी इनिशियल वेलोसिटी जो है या वेलोसिटी से जिस चीज उस स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है वो है 15 मीटर पर सेकेंड और उसका मास गिवन है 500 ग्राम. फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट. जब मैक्सिमम हाइट पे बॉडी चला जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाती है. एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. तो जब वो ग्राउंड को हिट करता है आके कोई चीज ऊपर से तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाती है काइनेटिक एनर्जी में. तो जब ग्राउंड को टच करने लगता है तो उस वक्त उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो चुकी होती है काइनेटिक एनर्जी में. इसलिए जब भी कोई चीज हाइट की तरफ जा रहा होता है तो बेटा उसकी याद रखिए हमेशा वेलोसिटी कम होती जाती है क्योंकि वो ग्रेविटी के ऑपोजिटली मूव कर रहा है. और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है तो उसमें ग्रेविटी भी ऐड हो जाती है तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे कोई चीज नीचे आती जाती है. तो हमने दो काम कर रहे हैं. एक हमने मैक्सिमम हाइट पे जाकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. दूसरा हमने ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी. सो मास ऑफ द स्टोन 500 तो we will change it into gram to kilogram. So dividing by 1000. तो हमेशा ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं 1000 से. सो वी विल गेट 0.5 किलोग्राम. 0.5 किलोग्राम का मतलब होता है आधा किलो. सो 0.5 kg. वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है. तो दोनों चीजें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा एक बात आपको पता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था या एनर्जी जो ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो जितनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है कोई ऑब्जेक्ट उतनी वो गेन करता है पोटेंशियल एनर्जी या जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है. तो दोनों एक दूसरे के ये क्या है इंटर रिलेटेड है. तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो उसकी स्पीड कम हो रही होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही होती है. सो देखो मैंने 1/2 mv² 1/2 mv². तो ये पहली वाली जो वेलोसिटी है ये vi है और जो ऊपर जाती है वो vf है. तो ऊपर जाके हमेशा कोई ऑब्जेक्ट जब हाइट पे चला जाता है सबसे ऊंची जगह पर चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो फिर मैंने vf की जगह पर क्या लिख दिया है 0. अब वेलोसिटी स्टोन एट मैक्सिमम हाइट बिकम 0 देयरफॉर vf क्या बन जाता है उसका 0.
सो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 vi²। तो जो उसको हमने क्वेश्चन में ऊपर पढ़ा था कि उसकी जो वेलोसिटी जिससे इसको ड्रॉप किया जा रहा है ऊपर को वो 15 मीटर पर सेकंड है, तो हमने 15 मीटर पर सेकंड इसमें 15 वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट पे। तो जब हम इसको जीरो को सॉल्व करेंगे तो जीरो तो सारे से मल्टीप्लाई करिए पूरे फैक्टर को जीरो कर देगा, तो बाकी रहेगा -1/2 0.5 और 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये 0.5 एज इट इज, और ये माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन देखो आप, तो -56.25 जूल। और ये पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाके है, टॉप पोजीशन पर है। तो एनर्जी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका आंसर आप पॉजिटिव ही समझेंगे। ठीक है। और दूसरा जो हमने काम करना है, जमीन को टच करने से पहले। जी बेटा। सर आपने -1/2 क्यों किया? यस सर आपने -1/2 क्यों किया? -1/2 ये वाला बेटा पूछ रहे हो? सर हाँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जरा एक बात आप, हम ना, कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड ज्यादा हो और एक ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड कम हो, तो क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है? टर्न ऑन द माइक्रोफोन प्लीज। हम ना, यस सर सेम होगी। नहीं बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही अपना ज्यादा है तो उसकी उस काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी ना, और जब वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो देखो यहाँ पर जब मैंने कहा है कि जब बॉल को या मैच को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 15 है, और जैसे जैसे वो हाइट पे जाता जाता है तो ऊपर जाते 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 उसकी स्पीड कम होती जाती है, और एक टाइम आता है कि बिल्कुल जब टॉप पे पहुंच जाता है ना तो उसकी स्पीड 0 हो जाती है, फिर वहां से गिरना शुरू हो जाता है। तो जब टॉप मैक्सिमम हाइट ले लेता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो टॉप पे जाके वेलोसिटी हमने उसकी 0 हो गई, तो वहां पर ही जाकर हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर फर्क किया है काइनेटिक एनर्जी का, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी जब उसको फेंका गया है और सबसे टॉप पे पहुंच के। जी बेटा क्लियर हो गया आपको ये? यस सर। जी, इसलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। यस सर। जी आगे चलूं अब बेटा मैं? ओके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, सो 1/2 mv²। तो ये देखिए 1/2 मैस कितनी है 0.5 और ये 15। जब नीचे आ रहा होता है ना तो जिस हाइट से उसको लॉन्च किया गया था उसी हाइट पे नीचे आकर वो हमेशा जमीन के साथ कोई चीज टकराती है। ठीक है। तो ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 15 होल स्क्वायर, सो 15 का स्क्वायर जो है 225, 0.5 को मल्टीप्लाई करें इससे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25। तो हमें इससे क्या रिजल्ट मिला है कि जिस एनर्जी से उसको हमने नीचे से ऊपर फेंका है, टॉप पे जाकर वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है बेटा। और जब वो पोटेंशियल एनर्जी वापस नीचे आता है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जी अब हम आगे चलते हैं। जी बेटा, अगर आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछें। हेलो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव ट्रबल टिल हियर, ओके हम ना, ऑलराइट। ओके थैंक यू। ओके जी, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
On reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. मैंने बार बार आप लोगों को एक मिसाल समझाने की कोशिश की है कि साइकिलिस्ट जब किसी स्लोप पर चढ़ता है तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी उस वक्त ज्यादा होती है और चढ़ते चढ़ते उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और टॉप पे जाकर उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा, जब वो दोबारा नीचे की तरफ मूव करता है, स्लोप से नीचे आता है, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो बेटा ये साइक्लिस्ट जो है उसकी एनर्जी की कन्वर्जन है। So a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and its bicycle is 40 kilogram. ये दोनों का मिलाकर mass होगा, साइक्लिस्ट का और उसके अपने बॉडी का। तो देखिए जो हाइट पे जाता है वो 6 मीटर है, स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, वेलोसिटी उसकी 1.5 मीटर पर सेकंड है और उसका मास 40 किलोग्राम है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये फाइंड करके फिर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हाइट पर जाके कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है, आपने सॉल्व कर देना है इसको। जी आगे चलते हैं। A motorboat moves at a steady speed of 4 मीटर पर सेकंड। ये बड़ा समझने वाला है जी, इस पे आपने ध्यान कीजिएगा बच्चों। A motorboat move at a steady speed of 4 मीटर पर सेकंड। जो मोटर बोट है वो एक ही स्पीड के साथ चलती जा रही है और उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जब मोटर बोट चलती है तो पानी के साथ वो फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट करती है उस पर, जो उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करती है, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। तो हमें फोर्स गिवन है जो कि रेजिस्टिव फोर्स है और मोटर मिनाहल you want to ask? Your microphone is on. Okay, so speed of the motorboat is 4 meter per second. It is given force F is equal to 4000 Newton, which is opposing. Okay, power of the motorboat we have to find, जो उसके इंजन की पावर है। अच्छा, यहाँ पर पावर लिखा हुआ है फॉर्मूला F मल्टीप्लाई बाय V, ये आपने नहीं पढ़ा, लेकिन ये उसी फॉर्मूले से आपने पावर का क्या पढ़ा था फॉर्मूला। पावर इज होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी बॉडी के काम करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी होती है, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, वो उसकी पावर होती है। तो W क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। W क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहां पर अगर हम फोर्स और मल्टीप्लाई बाय S लिख दें और नीचे डिवाइड कर दें T से, जरा गौर कीजिए, जरा एज्यूम कीजिए, ये मैंने लिखा, ये लिखा हुआ है फोर्स। फोर्स तो वर्क में आना है, पावर होता है फोर्स ओवर टाइम। तो जो यहाँ पर फोर्स के साथ जो डिस्टेंस आता है ना S, और नीचे टाइम आता है, तो S ओवर T का मतलब V होता है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? S ओवर T। तो S ओवर T को हमने क्या लिख दिया हुआ है? V। जी बेटा, क्लियर हो गया आपको ये? ओके, सो दोनों चीजें आप पुट कर दीजिए। 4000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आएगा 16000 वॉट। 16000 वॉट जब हम इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 की जगह पर के लिख देंगे, तो बन जाएगा 16 किलोवाट की वो मोटर है जो उस मोटर बोट को लगी हुई है। बड़ा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए बड़े आसान है सारे क्वेश्चन। A man pulls a block with a force of 300 Newton. Through 50 meter in 60 seconds. And the time को खींचने के लिए उसे कितनी पावर लगानी पड़ेगी? देखिए, फोर्स 300 न्यूटन, डिस्टेंस
that is 50 meter. Time 60 second. Okay, so power we have to find. Power का formula कितना है? Work over time. Power is equal to work over time, और work को W से और time को T से represent करते हैं. So work का formula क्या होता है? F multiplied by S divided by T. तो फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, लेकिन जी तीनों वैल्यूज पुट करते हैं, इसको कैलकुलेट कर दें तो 250 वॉट आ जाएगा. पावर का यूनिट वॉट होता है. सो 250 वॉट जो है उसको फोर्स लगानी पड़ेगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. ये देखिए, एक क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है. अ 50 किलोग्राम मैन move 25 steps up in 20 seconds. Find his power. It's if each step is 16 centimeter high. ये आदमी है और इस आदमी का कितना वेट है? 25 मैस है 25 किलोग्राम. मैस 25 किलोग्राम और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 होती है. अच्छा, इसने इस स्टेप्स के 25 स्टेप्स चलने हैं इस स्टेयर के, और टाइम 20 सेकंड लगाता है. तो बताना है कि इसकी पावर कितनी है. तो पावर फाइंड करने के लिए पहले हमें वर्क फाइंड करना पड़ेगा. जब वर्क आ जाएगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगी. सिंपल. तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो डिस्टेंस, ये वर्टिकल, ये वर्क जो है ना पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है, ऊपर जा रहा है बॉडी, mgh की फॉर्म में. सो वर्क इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाय t. तो वैल्यूज पुट कर दीजिए. ये देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 20 टाइम सेकंड. तो सॉल्व करेंगे तो ये 100 वॉट उसकी पावर उसको लगानी पड़ेगी. अच्छा, अब ये देखिए, ये जो हाइट है ना उसकी, ये 25 स्टेप्स हैं और एक स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर का है. जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्टेप की हमें हाइट मिलनी चाहिए, ये सेंटीमीटर में मिल गई, लेकिन हमें तो मीटर में चाहिए ना. तो इसको जब हम 400 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस जो उसका आ जाएगा 25 स्टेप्स का. सीढ़ी के 25 स्टेप्स हैं और एक स्टेप 16 सेंटीमीटर है. तो ये टोटल सीढ़ी की जो हाइट आ जाएगी ना जमीन से लेकर छत तक, वो 4 मीटर आ जाएगी. तो इसलिए यहाँ पर हाइट की जगह 4 लिखा है, जी की जगह 10 लिखेंगे, मैथ्स की जगह 50 लिखेंगे और टाइम्स की जगह 20 लिखेंगे. तो वैल्यूज पुट कर दी तो ये आ गया. सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है. देखिए, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप व्हिच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकंड. जी, पावर फाइंड करनी है और ये इसका जो पानी जो उठाता है, जो पंप होता है मोटर का, या मोटर जो है वो जमीन से पानी ऊपर उठाती है टैंक में भेजने के लिए. तो वो 200 किलोग्राम वाटर को उठाती है नीचे, और कितनी हाइट पे ले के जाती है? 6 मीटर की हाइट पे. ये 6 मीटर हाइट तकरीबन डबल स्टोरी हो जाती है और कितना टाइम लेती है? 10 सेकेंड. तो हमने बताना है कि वो मोटर की कितनी पावर है. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? W/T. ये वर्क जो है ये भी mgh की फॉर्म में है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1200 वॉट आ जाएगा. बिल्कुल सिंपल एज द प्रीवियस वन, बल्कि उससे भी आसान है. लास्ट क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट जरा लेंथी है. सो इसके पार्ट्स जरा देख लीजिए. 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज्ड. 1 हॉर्स पावर जो है उसकी क्या है? 1 हॉर्स पावर उसकी पावर है. मैं एट द एंड रिपीट करूंगा, जो भी आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो ये मैं खत्म करके फिर रिपीट करूंगा. एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज्ड टू रन वाटर पंप. एक पंप को चलाने के लिए 1 हॉर्स पावर की मोटर लगी है, और द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक. ऊपर एक टैंक लगा है जिसको फिल करने के लिए 10 मिनट लगते हैं. द टैंक हैज कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स. 800 लीटर्स है उसकी कैपेसिटी और उसकी हाइट है 15 मीटर. फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक. हमने बताना है कि उस टैंक को फिल करने के लिए उस मोटर को कितनी
कितना वर्क करना पड़ता है। एंड ऑल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। एफिशिएंसी होता है आउटपुट और इनपुट की रेशो को डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और ये भी आपने पढ़ा है 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है उस मोटर की पावर है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट की इक्वल होता है। और वो टाइम जो उसको फिल कर देती है टैंक को, वो 10 मिनट्स देती है। 10 मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। उसकी कैपेसिटी जो टैंक की है वो 800 लीटर्स है। 800 लीटर्स का मतलब है 800 किलोग्राम। हाइट जो है वो 15 मीटर है। 15 मीटर ऊपर उसने लेके जाना है पानी को। सो वर्क डन फाइंड करेंगे। सो वर्क डन और एफिशिएंसी। पावर, पहले उसकी पावर देख लें। पावर W वो T होता है। और पावर जो है उसकी देखिए यहाँ पर पावर की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, और वो 746 है और वर्क है W और ये T है। तो अगर हम इनको चेंज करें, इसको सिंप्लीफाई करें या इसको मॉडिफाई कर लें, तो ये देखो T जाकर P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W आ जाएगा P इंटू T। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। सिंस द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पंप इज दिस, सो इट इज इक्वल टू इनपुट। ये है इनपुट। उसके बाद इनपुट जो है वो एक्चुअल वर्क डन जो है उसके बराबर होता है, यानी जितना इनपुट है वही वो काम करती है। तो आउटपुट फाइंड करते हैं। आउटपुट इज इक्वल टू mgh, क्योंकि पानी को ऊपर लेके जाना है। पानी को ऊपर लेके जाना है तो पानी का देखिए मैस कितना है, 800 लीटर है तो 800 किलोग्राम होता है, क्योंकि 100 लीटर जो है वो 100 किलोग्राम के इक्वल होता है। सो आउटपुट जो उसका है उसको हम करेंगे। आउटपुट जो है ये वर्क mgh की फॉर्म पुट करेंगे। मैस इज 800, g की वैल्यू 10 होती है और ये 15, क्योंकि ऊपर हाइट पे जा रहा है तो mgh की फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ। तो ये 120,000 जूल आ जाएगा। और एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं, आउटपुट को डिवाइड कर देंगे इनपुट के साथ। तो देखिए इसको डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई में 100 कर दें तो ये परसेंटेज में 26.8% आ जाएगा। जी बेटा, अभी मैं टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन अगर आप लोगों का कुछ इसमें है कोई कंफ्यूजन या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप, अभी टाइम है।